Hello, my dear friends. Welcome to all of you once again in my YouTube channel, Earth Classes. My dear friends, I Ajay Kumar Misra. Thank to all of you, all my friends, subscribers, viewers, and all Earth Classes family. My dear friends, for your cooperation, our team is getting boosted up, and every day they are uplifting their knowledge. They are being energetic to provide you a new video. My dear friends, today I Ajay Kumar Misra in chemistry section. Earlier I have already taught you chemical reactions and equation. In chemical reaction equation, we have already discussed about the what definition of equation, chemical reactions, type of chemical reactions, and first types of chemical combination reaction. Now, my dear friends, today I will teach you decomposition reaction and so on. Continue. So, you will concentrate here. Now, I will provide you all types of knowledge related to that text. My dear friends, today in decomposition reaction, what is the types of decomposition reaction we will discuss. Before starting the class, once again I would like to say all of you, if you get any confusion, any problem in the section of teaching, definitely either in section of teaching you are getting confusion, or either in the our technical problem in our system, definitely you will comment in right comment box so that we will try to improve it. अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है मेरी टीचिंग में या मेरी टीम की टीचिंग में, तो उस क्वेश्चंस को इमीडिएट आप कमेंट बॉक्स में डालें. आपकी सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आते ही इमीडिएट घंटे भर के अंदर रिप्लाई जाएगा बेटा. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो ये फर्स्ट स्टेप है डीकंपोजिशन रिएक्शन. व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन? तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्लियर कर रहा है ये डीकंपोजिशन. और नाउ it has been made by two words, decomposition and second one is reaction. You know very well what is the reaction, chemical reaction. And now decomposition. D, if you separate it, D it means to separate. To separate. And composition. Composition it means the things which is made up of. The things which is made up of. जो चीज जिससे मिलकर बना है वो कंपोजिशन कहलाता है, और उस कंपोजिशन को हम हटा दें तो डीकंपोजिशन कहलाता है. यू अंडरस्टैंड? समझे? समझा राहुल? राहुल समझ में आई बात? डीकंपोजिशन रिएक्शन बेटा, डीकंपोजिशन का मतलब होता है डी इट मींस टू सेपरेट, अलग करो, और कंपोजिशन का मतलब जो चीज जिस चीज से मिल के बना है दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन. मुन्ना समझ में आया? समझ में आया?
यस, बिल्कुल राइट। टू सेपरेट एंड विच इज मेड अप द थिंग्स विच इज मेड अप ऑफ। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग इसका डिफाइन कैसे करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू योर दिस चैप्टर decomposition reaction, it means single reactant or the things which has been broken down into two or more simpler form, that is called decomposition reaction. Single reactant broken down into two or more simpler form by different process, that is called decomposition reaction. Have you written it? लिख लिया? लिखे बेटा इसको decomposition को, because I am going to remove it. Could I erase it? Yes, very good. Now write down the definition. आप definition लिखिए। क्या? decomposition reaction. decomposition किसको बोलेंगे? When single reactant broken down into two or more simpler form of products two or more simpler form of products by different process, कॉमा दे दीजिए, called decomposition reaction. क्या बोलेंगे इसको? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे। बढ़ेगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे? एक केमिकल इक्वेशन से हम इसको आपको बना के दिखाते हैं। CaCO3 इसका नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कॉमन नेम अगर बात करें इसकी तो मार्बल बोलते हैं, मार्बल। ये क्या है? मार्बल है। When you heat it, जब इसको हम हीट करेंगे, ट्रायंगल का मतलब होता है हीट। When we supply heat on calcium carbonate, तो this is the reactant, ये सिंगल रिएक्टेंट है। और जब इस पे हीट पास करेंगे तो ये ब्रोकन डाउन और टूटेगा CaO प्लस CO2 प्लस हीट एनर्जी रिड्यूस करेगा। तो एक टूटा किसमें? कैल्शियम क्विक लाइन बोलते हैं इसको, क्विक लाइन, और कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हैं आप, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका नाम हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सिंगल, अकॉर्डिंग टू योर डिफिनेशन, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट्स, एक कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में टूटा बाय द डिफरेंट प्रोसेस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ डिफरेंट प्रोसेस से हम तोड़ सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर मैंने हीट सप्लाई किया तो ये सिंगल रिएक्टेंट टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हम इलेक्ट्रिक करंट पास करा करके भी कर सकते हैं, सनलाइट पास करा, लाइट को पास करा के कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप्स होता है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन,
और एक एग्जांपल मैंने देखा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कुड आई रीड इट? रोहन, बता दे. यस, वेरी गुड. Yes, coming. Are you getting late? Don't be late in my class. Okay, take your seat. Be punctual, my dear students. Be punctual. Don't be late. It's not a good habit. If you be disciplined in your life, you will achieve a lot. You can get all the things. But if you are indisciplined, you will lose all the things. Never improve in your life. So try to understand. Be punctual. Now, types of decomposition reaction. Types of decomposition reaction. So there are three types of decomposition reaction. They are three in number. They are three in number. ये कितना पार्ट में है? तो 3 पार्ट में होता है. फर्स्ट पार्ट होता है थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन. सेकेंड जो होता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन. और थर्ड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोल सकते हैं आप. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. और थर्ड होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. थर्ड क्या होता है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है. थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एंड थर्ड वन इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. Now one by one we will know what are these types of reactions. So first of all we will discuss about the thermal decomposition. What is thermal decomposition reaction? Thermal decomposition reactions क्या है? सुनो, thermal decomposition किसको बोलते हैं? आयु सुनो. हाँ, yes, good. Okay, now see here. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि those which chemical reaction will be broken down into 2 or more simpler form by heating. थर्मल का मतलब होता है हीट. थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा मेरा? हीट होता है. तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के कारण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं. क्योंकि थर्मल का ही दूसरा नाम क्या होता है? हीट होता है. नाउ जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड. पावर प्लांट का नाम सुने? थर्मल पावर प्लांट, थर्मल बोकारो थर्मल का नाम सुने? एनटीपीसी का नाम सुने हैं ना? एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आपको? एनटीपीसी. एनटीपीसी. तो एनटीपीसी का मतलब क्या होता है? तो एनटीपीसी दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन है. वो करती क्या है? तो वो पावर, पी इट मीन्स पावर और सी इट मीन्स कॉर्पोरेशन, जो वो ऐसी संस्था है. एन का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. नेशनल पावर
THERMAL, थर्मल पावर और कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? एक ऐसी संस्था भारत की जो बिजली उत्पादन करती है, और वो बिजली उत्पादन कैसे करती है? हीट के थ्रू करती है, थर्मल से। इसीलिए टी का मतलब थर्मल हीट होता है, और इसको मैंने को रिलेट करके आपको बताया कि थर्मल का मतलब क्या होगा? हीट होगा। तो वो एनटीपीसी जहां जहां भी संस्था लगी हुई है, वो क्या बिजली उत्पन्न करती है? कैसे करती है? बड़ा बड़ा बॉयलर होता है, उस बॉयलर में वाटर होता है, और वाटर को हीट कर दिया जाता है। तो हीट करने के लिए क्या हो, या तो कोल यूज करें, क्रूड यूज करें। तो मेनली अभी रिसोर्सेस मेरे पास कोल होता है, तो कोयले को ही यूज करता है, तो हीट करता है वाटर को, और वाटर जब हीट होता है स्टीम बनता है, और वो स्टीम को पाइपलाइन के थ्रू टरबाइन के पास ले जाता है, और टरबाइन मूव करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसलिए इस तरह की संस्था को बोला गया थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आपकी टाइम तो आउटडेटेड हो चुकी, आप कभी विजिट करते होंगे डिफरेंट प्लेसेस पे, तो वहाँ स्टीम इंजन एज ए एग्जीबिशन के तौर पे प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन के आगे लगा होता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टेशनों में आप जाएंगे तो वो स्टीम इंजन कैसे चलती थी? उसके ऊपर एक बड़ा सा टैंक बना होता था जिसमें वाटर रहती थी, और ड्राइवर जो चलाता था वहां पर वो लेबर होता था, वो कोयले को डालता था, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता था, और टैंक से वाटर वेपर बनता था, और वो स्टीम जा करके वो पिस्टन को आगे पीछे करता था। इस तरह ट्रेन चलती थी। तो मेरे कहने का इतना समझाने का मतलब एक ही मकसद है कि थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट होता है। तो यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोजिशन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ हीट, इसलिए इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। राइट नाउ ओके, तो थर्मल डिकम्पोजिशन दोज व्हिच केमिकल रिएक्शन, दोज व्हिच decomposition reaction those which decomposition reactions are broken down by the broken down two or more simpler form by the process of heat, called thermal decomposition reaction. Thermal decomposition reaction, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल जस्ट आपने अभी देखा था बेटा, CaCO3 को जब मैंने हीट किया था तो CaO प्लस CO2 बना था। आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, 2KClO3, इसको मैं हीट करूंगा, पोटासियम क्लोरेट बोलते हैं, इसका नाम क्या है? पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट, तो पोटासियम क्लोरेट में जब हीट सप्लाई करेंगे, व्हेन वी सप्लाई हीट इन पोटासियम क्लोरेट, इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू पोटासियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस, 2KCl plus 3O2, 2KCl plus 3O2 में टूट जाएगा, दैट इज पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, और ये हो गया ऑक्सीजन गैस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एग्जांपल आप देख सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का, थर्मल डिकम्पोजिशन का एक नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग?
FeSO4 into 7H2O, FeSO4 into 7H2O, जब हीट सप्लाई करेंगे तो FeSO4 प्लस 7H2O में टूट जाएगा। फिर FeSO4 को हम हीट सप्लाई करेंगे तो SO4 जो है वो SO2, SO3 और APO में टूट जाएगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल में आएगा। FeSO4 into 7H2O, 7H2O ये हेप्टाहाइड्रेटेड, ये इसको बोलते हैं जब वाटर मिक्स रहता है तो इसको हाइड्रेटेड बोलते हैं। कहीं भी आपको टर्मिनोलॉजी मिले H2O मिक्स हुआ 7H2O 5H2O CuSO4 into half H2O आता है ऐसा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले में आपको मिलेगा, उसमें भी आएगा। तो ये इसका मतलब होता है कि इसमें वाटर मिला हुआ है। जब इसमें टेम्परेचर आप देंगे, हीट सप्लाई करेंगे तो ये FeSO4 प्लस H2O में टूट जाएगा और फिर FeSO4 को हम हीट सप्लाई करेंगे तो ये FeO प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट जाएगा। Now you will balance it. Now I am giving you as a homework. You will balance the chemical equation because just I am going to proceed the next point of decomposition reaction. It means thermal के बाद क्या था आपका? तो electrolytic decomposition reaction। तो ये FeSO4 प्लस FeO प्लस SO2, तो देखिए सिंगल प्रोडक्ट है ना, सिंगल रिएक्टेंट है और टू और मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप जस्ट ऑल द थिंग्स इट इज बीइंग क्लियर, you won't face any problem. After all, you feel we are getting any confusion, you are most welcome in my class. You are most welcome in offline in my YouTube channel and classes. You will put down the question in comment box. I will send the answer. Now second, thermal electrolytical decomposition। इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है? इसको सिंपल वे में आप समझ सकते हैं, सिंपल वे में आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ये भी बना टू वर्ड से, इसमें भी दो वर्ड से बेटा। वर्ड एक है तोड़ेंगे तो ये दो में टूटेगा, एक होता है इलेक्ट्रो, इट मींस इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस का मतलब ब्रोकन डाउन, तोड़ो, अलग करो, ब्रोकन डाउन। वैसे सब्सटेंसेस को, वैसे कंपाउंड को जिसको मैं तोड़ूंगा टू और मोर सिंपलर फॉर्म में बाय एन एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस समझने के पहले just I am going to give you some basics knowledge also once again, so that you can correlate. I know you know very well, but just before explaining the electrolysis, I explain all the terms, all the technical words related to electrolysis or electrolytical decomposition. So you will concentrate, you try to understand, and then you will see the electrolysis.
माय डियर स्टूडेंट्स, आपने आपके घर में बैटरा है, बैटरा देखे हो ना, बैटरा है ना, बैटरे में क्या होता है, आप देखते हैं कि ये दो रॉड होता है, ये दो रॉड है, ये दो रॉड होता है, ये दो रॉड, ये बैटरा बन गया। इसके अंदर देखिए आपको पता है कि क्या भरा रहता है, एसिड भरा रहता है, एसिड भरा रहता है ना, इसमें ग्रीन है और एक रेड है, रिबन लगा रहता है। तो व्हाट आर दीज, ये है क्या, तो दीज आर इलेक्ट्रोड, इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड। इसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसको टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं पता है आपको, आप बोलेंगे एसिड रहता है सर, एसिड भरा हुआ, ठीक है एसिड भरा रहता है, तो हम क्या बेस नहीं डाल सकते हैं, बेस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकते, बेस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकते हैं, बेस इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, यस बिल्कुल डेफिनेटली, वहां भी टूटता है। तो यहां पर इसका नाम होता है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक बल्ब से बैटरी से जोड़ देते हैं और स्विच लगा देते हैं। तो नया नया बैटरी अगर घर में लाए हैं आप, तो डायरेक्ट अगर टीवी चलाना है, फैन चलाना है तो चलता है क्या, चलता है, मैन चलता है, नहीं चलता। क्यों नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता है बेटा, इसलिए कि चलाने के पहले दुकानदार आपको बोल दिया, क्या बोला, अभी इसको 24 घंटा चार्ज करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय द चार्ज, चार्ज क्या था, क्या चार्ज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कहां चार्ज करना पड़ेगा, तो बोला कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट में लगा करके इसको लगा दीजिएगा 24 घंटा और तब ये चार्ज होगा। 24 घंटा क्यों लगाने के लिए बोला पता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर H2SO4 जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में एसिड जो इसको बोल रहे हैं आप डालें, जब आप इलेक्ट्रिक करंट में इसको लगाते हैं तो ये टूटता है, दिस इज द मैकेनिज्म H2SO4, ये टूटेगा, 2H प्लस आयन एंड SO4 माइनस आयन। तो डू यू नो व्हाट इज द आयन, चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयन, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयन, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। अब यहाँ पर आयन भी मैं लिख दे रहा हूँ, IONS, एक आयन है, एक वर्ड इलेक्ट्रोड है और तीसरा वर्ड इलेक्ट्रोलाइट है, 3 टर्मिनोलॉजी आया। तो H2SO4 को जब आप इलेक्ट्रिक करंट दिए, इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट दिए 24 घंटा, तो ये H2SO4 टूटा और टूट करके H प्लस आयन और SO4 माइनस आयन में दिया, 2 माइनस आयन, तो ये 2 माइनस आयन में टूटा। तो प्लस और माइनस चार्ज, ये चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, कौन अट्रैक्ट करेगा, तो सेम चार्ज में रिपल्सन होता है और डिफरेंट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये प्लस चार्ज है, इसको अट्रैक्ट कौन करेगा, तो इसको अट्रैक्ट करेगा निगेटिव रॉड करेगा। तो निगेटिव रॉड कौन है ये, तो निगेटिव रॉड अट्रैक्ट करेगा, तो ये चार्ज इस पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, और SO4 माइनस है तो इस पर जाकर डिपॉजिट होगा, तो प्लस पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। और इस तरह से 24 आवर में ये चार्ज होता है। जब आप स्पार्क कराते हैं तो स्पार्किंग, जब दो तार को एक दूसरे से पॉजिटिव नेगेटिव को सटाते हैं तो स्पार्किंग होती है। इट मींस आप कहते हैं कि चार्ज हो गया, चार्ज हो गया मतलब ये सारा डिपॉजिट हो गया इस पे, और नाउ इट इज रेडी फॉर वर्किंग द डिफरेंट अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें इलेक्ट्रिक करंट मैंने पास किया और ये टूट गया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अब आप इस चीज को समझ लें कि इलेक्ट्रोड कितने टाइप का होता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयन, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, कैटायन और एनायन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो देयर आर डिफरेंट
6 terminology it has been come right now. Now my dear students, आपसे मेरी उम्मीद होगी आप ये 6 टर्मिनोलॉजी का डिफिनेशन अपने जूनियर क्लासेस में आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिकवर करें, रिमाइंड करें, सो दैट आई कैन प्रोसीड द कंटिन्यू इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन। तो इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन। देखिए आपको बनाना जो है ऐसे होमवर्क जो मैं दे रहा हूं, ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या होगा बेटा मेरा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और तीसरा क्या हो गया? आयंस। आयंस कितने टाइप का है? 2 टाइप्स का, कटायन और एनायंस। तीसरा क्या, चौथा क्या आपका? तो चौथा आपका इलेक्ट्रोड है। ये कितने तरह का है? ये भी 2 तरह का है, कैथोड और एनोड। नाउ मैं एक बार बोल दे रहा हूं, आप अपने जूनियर बुक्स, जूनियर क्लासेस के बुक से आप उसको राइट डाउन करेंगे, और नहीं मिलता है तो मैं बोल रहा हूं आप रीटेक करते रहे, बार बार इस चैनल में जाएं और मेरी इस वीडियो को देखें और देख कर उसको राइट डाउन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट chemical substances which is in liquid form, either acid, base or salt, which conduct electricity, that is called electrolyte. Chemical substances which conduct electricity, that is called electrolyte. And the chemical substances which do not conduct electricity, that is called non-electrolyte. Ions किसको बोलेंगे? Charged particles are called ion. There are 2 types of ion, cation and anion. cation पॉजिटिव होता है और anion नेगेटिव होता है, याद रखेंगे। cation पॉजिटिव और anion नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर cation and negative charge particles are called anion. जस्ट इसका अपोजिट होता है कैथोड। तो cation पॉजिटिव है तो कैथोड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसको क्या बोलेंगे आप? कैथोड। और इसको क्या बोलेंगे आप? एनोड। तो सबसे पहले बात करें हम लोग कि इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं? मेटलिक और नॉन मेटलिक रॉड which dipped into the electrolyte, मेटलिक और नॉन मेटलिक रॉड जो इलेक्ट्रोलाइट में डूबा रहता है, इलेक्ट्रोलाइट में डूबा रहता है और वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब बात हुई कि मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल का भी हो सकता है। अब मेटल का होगा तो एक अपने आप कैथोड बन जाएगा, दूसरा एनोड बन जाएगा। वो कैसे बनेगा? तो आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े, जिसकी हाई रिएक्टिविटी सीरीज हाई रिएक्टिविटी है वो कैथोड बन जाएगा और दूसरा एनोड बन जाएगा। कार्बन रॉड ले लीजिए तो ऑलरेडी नॉन मेटल है। जिंक ले लेंगे, जिंक रॉड और कार्बन रॉड ले लेंगे तो जिंक रॉड और कार्बन रॉड में एक कैथोड बन जाएगा और दूसरा एनोड बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोड किसको बोलेंगे? तो मेटलिक और नॉन मेटलिक रॉड which dipped into the electrolyte and it is used to store the charged particles are called electrode. तो what is the cathode? तो कैथोड किसको बोलेंगे? तो नेगेटिव चार्ज पर नेगेटिव रॉड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड is called cathode and positive electrode is called anode. तो ये डिफिनेशन हुआ आपका। नाउ बात करें हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन का। इट वाज द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बोलेंगे? तो ये सब अलग अलग नाम था। अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ी इलेक्ट्रोलाइसिस तो कंप्लीट प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस, इसको हम प्रोसेस बोलते हैं।
जब पूरी प्रोसेस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, सिंगल को नहीं बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए प्रोसेस where the chemical substances are broken down into two or more simpler form by the process of electric current, that is called electrolysis, and such types of reactions is called electrolytical decomposition reaction. Now those which chemical reaction, those we write down, those which chemical reaction are broken down into two or more simpler forms, those which decomposition reaction are broken down into two or more simpler form by electric current called electrolytic decomposition reaction. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, एक्वस फॉर्म में AQ लिखा मैंने इसको, AQ मतलब सोडियम सॉल्ट है। अगर सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। Why? Because it does not produce any types of ions. So for producing the ions, first of all we mix into the water and now we pass the electric current. इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे इसमें, तो ये Na प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। Na प्लस और Cl माइनस आयन में टूट गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज। ये इसके मैकेनिज्म को लिखेंगे तो Na प्लस आयन जो है एट कैथोड, चूंकि कैथोड क्या था, बड़ा नेगेटिव नोड था, वहां पर जाकर डिपोजिट होगा, और Cl माइनस आयन एट एनोड। इन दिस वे यू हैव टू एक्सप्लेन, दिस इज द decomposition reaction, this is the single reactant and broken down into two simpler form, Na plus and Cl minus ion। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट है बेटा मेरा, वो है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन एक और प्रैक्टिकल के फॉर्म में आते रहता है जहां आपको कंफ्यूजन होती है। ये है H2O, वाटर है, इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे, इसको इलेक्ट्रोड से जोड़ दिए, इसमें दो बीकर लगा देते हैं, तो देखता हूं कि इसके ऊपर ऐसे है और एक के ऊपर, एक में यहां है और एक में यहां है। तो H2O में जब आपने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया तो ये 2H प्लस आयन एंड O2 माइनस आयन में टूट गया। इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कभी कभी क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आता है इस तरह का फिगर दे देता है आपको और पूछता है कि भाई एक में कम है दूसरे में ज्यादा क्यों है, तो इसका रिएक्शंस हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1, 2:1 के फॉर्म में ये है। 2:1 इट मींस इन द फॉर्म ऑफ एटम्स,
तो डेफिनेटली जिसमें कम है वो ऑक्सीजन है, जिसमें ज्यादा है वो हाइड्रोजन। ये H2 गैस है तो ये ऑक्सीजन गैस, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। अब इसका टेस्ट कैसे करेंगे? तो एक में बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे हाइड्रोजन वाले में, तो पॉप साउंड के साथ वो पुट ऑफ हो जाता है। हालांकि हाइड्रोजन गैस क्या करता है, जलता है और फिर जलने भी लगता है। नाउ ऑक्सीजन गैस वाले में जब हम बर्निंग कैंडल लगाएंगे तो और तेजी से जलने लगता है। इट मींस ऑक्सीजन गैस इज सपोर्ट फॉर बर्निंग एंड हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विद पॉप साउंड। तो ये टेस्ट है, इसका पता लगता है कि किसमें कौन सा गैस है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में ब्लैंक छोड़ के देता है। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जिसमें ज्यादा है वो हाइड्रोजन, जिसमें कम है वो ऑक्सीजन है। एंड इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। पिछली बार की तरह फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी ये रिएक्शन हो रहा है, इसके साथ एक और रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन इंडो का मतलब गेन करना और थर्मल का मतलब हीट, और रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शन करता है, तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज विच केमिकल रिएक्शन वेयर हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक chemical reactions। and decomposition reactions mostly, again I am saying not 100%, 70 to 80% decomposition reactions are endothermic reactions, but all decomposition reaction may be endothermic, but all endothermic won't be decomposition reaction। सारा endothermic reaction decomposition नहीं हो सकता है, लेकिन करीब करीब decomposition reaction endothermic होता है। अभी फिर मैं आपको एक एग्जांपल देके प्रूव करूंगा उसको, क्योंकि ये डिफिनीशन से बोलता है decomposition reactions में कि रिएक्टेंट सिंगल होगा और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा होगा, लेकिन इसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होगा, प्रोडक्ट भी ज्यादा हो जाएगा, और वो भी इंडोथर्मिक रिएक्शंस को शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि सभी इंडोथर्मिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता है, लेकिन सम डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक हो सकता है। तो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन? दोज व्हिच केमिकल रिएक्शंस continued by using the thermal, absorbing the heat, that reaction is called endothermic reaction। Now we will discuss about the photolytic decomposition reaction। तो यहाँ पर क्या है photolytic decomposition reaction? इसमें फोटोन लाइट एनर्जी के थ्रू करते हैं, जैसे AgBr, AgCl, 2AgBr, 2AgCl, इसमें हम फोटोन मतलब लाइट या लाइट एनर्जी लेंगे सनलाइट की एनर्जी में, तो ये Ag प्लस और Br 2 माइनस साइन में हो जाता है। AgCl को भी सनलाइट के प्रेजेंटेशन में जब हम लोग इसको पास कराएंगे तो 2Ag प्लस और Cl 2 माइनस साइन में टूट जाता है।
तो ये लाइट एनर्जी के कारण डिकम्पोज होता है, इसलिए इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो उसमें मैं आपको रेस्पिरेशन बताया था, यहाँ एक है क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस में आपने अभी लाइव प्रोसेस का वीडियो देखा था, फोटोसिंथेसिस का डार्क फेज, लाइट फेज, क्या क्या आपके सर ने नहीं बताया, NADPH, ATP, क्या क्या, मतलब I have observed, I have seen such a video and amazed. What's the style of teaching? It's very fantastic. My dear students, यहाँ फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करेगा, वाटर मिनरल लेगा, H2O लेगा, एटमॉस्फेयर पर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर ये सनलाइट लिया और सनलाइट लेकर के क्या बनाता है वो, तो C6H12 वो 6 बनाता है, भोजन बनाता है, और क्या रिलीज करता है, 6O2 रिलीज करता है, और ATP के फॉर्म में एनर्जी देता है। तो यहां पर आप देखें ये क्या हुआ, सनलाइट ले रहा है, दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट भी ज्यादा दे रहा है, तो दिस इज अ फोटोलाइटिक फोटोसिंथेसिस। ये सिंथेसिस कर रहा, फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट से, लाइट के थ्रू ये केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो दीज आर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये इसमें क्या कर रहा है, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा, ले रहा है, और तब उसके बाद कुछ प्रोड्यूस, आप बोलेंगे सर Ag प्लस एनर्जी रिलीज भी तो कर रहा, सर रिलीज कर रहा, लेकिन पहले वो टूटने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ दिस इज द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, all types of decomposition reactions and various types of chemical equations and reactions we have already seen. I can proceed next topic that